खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बता तेरा रज़ा क्या है, बता तेरा रज़ा क्या है। आज जो हमारा रज़ा है सो दैट इज़ 5 टफेस्ट PYQ क्वेश्चंस फ्रॉम जे एडवांस 2025 मिक्स्ड प्रॉब्लम है। आपका ड्यूटी बनता है इस सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से वॉच करो, फिर लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। So yeah, the more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. आज का जो very first question है, if alpha is equal to integrations up to 2 tan inverse x by 2 x square minus 3x plus 2 dx, then the value of root 7, clear tan of 2 alpha root 7 by pi. So this is alpha. So this is what? So this is alpha is equal to, so here half say 2, so this is tan inverse x, and so this is by 2x square minus 3x, so this is plus 2 dx. ठीक है, ऐसा है. So here what we'll do here, so this is 2x square minus 3x plus 2. Just simply put, जब भी ऐसा लिमिट होगा तो आपको ऐसा ही पुट करना है, पुट x equal to 1 by z है. So this is dx equal to is what, minus 1 by z square dz है. So this is जब x का लिमिट हाफ है, z 2 है, x का लिमिट जब 2 है, ये हाफ है. So this is tan inverse 1 by z. So this is 2 by z square minus 3 by z plus 2. So this is what, minus 1 by z square dz. ठीक है. So this is what, a minus से इसको चेंज कर दो. So this is 1 by 2 से 2 and यहीं पे z square कैंसिल हो जाएगा. So this is cot inverse z. ठीक है. And so here is what, 2z square minus 3z plus 2 dz. ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ. So this is half से 2, so you can write, so this is cot inverse x by 2x square minus 3x plus 2 dx. ठीक है. Here suppose this is alpha and ये भी तो अल्फा है, दोनों को ऐड कर दो. So this is 2 alpha is equal to is what, so this is half से 2 a tan inverse x plus cot inverse x. So this is tan inverse x plus cot inverse x and नीचे क्या है देखो, so this is 2x square minus 3x plus 2 dx. ठीक है. So this is alpha का जो वैल्यू है, so this is यहीं से pi by 2 है, so this is pi by 4 हो गया. So this is half say 2 dx and you take common 2 is here. So it will get, so this is x square minus 3 by 2x plus 1. So like this 2 into 4, so this is pi by 8 है. And so this is half say 2, इसे perfect square में reduce करो. So this is x minus 3 by 4 का whole square and 1 minus 9 by 16 है. So that is what, root 7 by 4 का whole square. So that is what, pi by 8 into 1 by 8. Clear? इसका उल्टा. So this is 4 root 7 and so this is tan inverse 4x minus 3. So this is by root 7 and limit, so this is half say 2. Clear? So what we'll do here, देखो, so this is pi by 2 root 7. Pi by 2 root 7. So this is tan inverse, जब x का वैल्यू 2 है, 8 minus 3 5 by root 7. ठीक है. And so this is minus tan inverse, जब x का वैल्यू हाफ है, 2 minus 3 minus, so this is plus 1 by root 7. ठीक है. So this is equal to is what, pi by 2 root 7 and so this is tan inverse this. Clear? So what you will get, so this is tan inverse, ठीक है, 6 root 7. ठीक है. So this is 6 root 7, so this is by 2 है. Clear? So ये है इसका कैलकुलेशंस. लेकिन अभी आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना था. आपको फाइंड करना है, so this is clear. So that means a alpha is equal to this. ठीक है. अल्फा जब this value है, so this is alpha. ठीक है. Clear. So this is what you will get. So this is alpha 2 root 7. 2 root 7 by pi is equal to tan inverse. So 6 root 7. So this is by 2 है. So this is tan of alpha root 7 by pi. So that is equal to is what, 6. So like this. अभी so that is equal to is what, so it will get root 7 into tan of, so this is alpha root 7 by pi, so that is equal to 6 into 7 by 2, so that is equal to 21. ठीक है. ये आपको फाइंड करना था, बस nothing else. आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है देखो, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड ए फ्रॉम आर टू आर एंड जी फ्रॉम आर टू 0 4 है. बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है. जी एक्स इक्वल टू 4 बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x. डिफाइन द कंपोजिट फंक्शन से a कंपोजिशंस g ऑफ इनवर्स, सो दैट इज a कंपोजिशंस g ऑफ होल इनवर्स ऑफ x f इक्वल f ऑफ g ऑफ इनवर्स x. देन व्हाट यू विल फाइंड आउट, you will find out a compositions g inverse
का फंक्शन सेट x इक्वल टू 2 पे क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। यहीं पे क्या है देखो, सो दिस इज सॉल्यूशन। यहीं पे क्या है e फ्रॉम r टू r है, and so this is g from r to, so this is like this, and here if x equal to is what, if x equal to log of so x square plus 2x plus 4 है, and gx equal to is what, and gx equal to 4 by 1 plus e to the power minus 2x है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है ए कॉम्पोजिशन g इनवर्स एट x equal to 2 पे क्या होगा, दिस इज योर क्वेश्चन है। So my dear friends, suppose if you consider let g inverse of x, so that is equal to hx है, ठीक है। g का is this, तो h जो फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, so like this, यहीं से यहीं तक है। अभी suppose this is y equal to this, so यहीं से you can write, so this is hx equal to is what, so this is minus half log of, so this is 4 minus x by x है, ठीक है। यहीं से you can write, ठीक है। and f of h, so this is f of h equal to is what, log of h square plus 2h, so this is what, so this is 4 है, ठीक है। जिसमें क्या है h का जो रेंज है सो 0 से 4 का बीच में है, ठीक है। सो देयरफॉर f dash ठीक है hx, so that is what, clear, f dash, ठीक है। सो दिस इज f of h, ठीक है। क्लियर, वो लास्ट में हम लोग पुट कर देंगे, सो दैट इज what, क्लियर। सो दिस इज 1 by hx का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ hx, एंड सो दिस इज 4 है, ठीक है। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ hx प्लस 2, ठीक है, एंड सो दिस इज h dash x, सो दिस इज h dash x, बट एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पे क्या होगा देखो, सो दिस इज f dash h of 2, सो दैट इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ h2, ठीक है, एंड सो दिस इज h dash 2, सो दिस इज व्हाट, h2 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ h2, ठीक है, एंड सो दिस इज प्लस 4 है, ठीक है। ये आपको सीखना है। सो दिस इज अभी देखो h of 2, ठीक है, क्लियर। h of 2 यहीं पे hx इक्वल टू दिस, h of 2 क्या होगा, 2 by 2, सो दैट इज 1 है, तो ये तो 0 है, ठीक है। एंड h dash 2, ठीक है, h dash 2, सो दिस इज यहीं से hs ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हो। सो दिस इज देखो, so suppose if you want to find our clear h dash x, ठीक है, h dash x क्या हुआ, h dash x, so that is log x, log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 by x, x by 4 minus x into इसका जो डेरिवेटिव है, so this is x square, so this is x into minus 1 minus 4 minus x into 1 है, ठीक है। so that means is what, देखो ये इसका साथ कैंसिल हो रहा है, so this is what will get minus x, and so this is ये भी कैंसिल, so this is minus half, so this is 1 by x into 4 minus x, and here is what, minus x plus x, so that is minus 4 है, so that means is what, a इसका साथ कैंसिल, so that is 2 by x into 4 minus x है, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स जब h dash 2 फाइंड करोगे, देखो h dash 2 का मतलब क्या है, 2 2 कैंसिल, 4 minus 2, so that is 4 minus 2, so that is half है, so this is 2 into half, ठीक है। ये तो 0 है, ये तो 0 है, so that is क्लियर, सो दिस इज बाय 4 है, क्लियर, सो दैट इज व्हाट, 1 by 4 है, इसे आपको समझना है, बस नथिंग एल्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस जेईई एडवांस 2025 में पूछा गया था। अभी हम लोग को जो डिस्कस करना है, सो दिस इज कंसीडर 3 वेक्टर्स, x वेक्टर इक्वल टू इज व्हाट, i plus 2j plus 3k, y वेक्टर्स इज व्हाट, 2i plus 3j plus k वेक्टर्स, z वेक्टर्स इक्वल टू 3i plus j plus 2k वेक्टर फॉर 2 distinct positive real numbers alpha and beta. Define x equal to alpha x plus beta y minus j, y vectors equal to alpha y vectors plus beta z vectors minus x vectors, z vectors equal to alpha z vectors plus beta x vectors minus y vectors. If the vectors x y z lie in a plane, then the value of alpha plus beta minus 3 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। जब x y z lie in a plane है, x, ठीक है, यहीं पे बोल रहा है क्या, x वेक्टर्स क्या है, सो दिस इज x वेक्टर्स इज i plus 2j plus 3k है, ठीक है, एंड y वेक्टर्स, सो दिस इज y वेक्टर्स, सो दैट इज व्हाट, 2i plus 3j, ठीक है, एंड सो दिस इज k वेक्टर्स, z वेक्टर्स इक्वल टू इज व्हाट, 3i plus z, सो दिस इज ट्वाइस k वेक्टर्स है, ठीक है, क्लियर। यहीं पे so these are small x, small y, and so this is जो capital X vectors है, so this is alpha x, so this is beta y minus z vectors है, and so this is y vectors equal to is what, alpha y vectors, so this is beta z vectors minus x vectors है, so this is z vectors equal to is what, alpha
z vectors, so this is beta x vectors minus y vectors है. यहीं पे बोल रहा है this clear, so these vectors lie in a plane है. Then the value of alpha plus beta minus 3, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है. इसका वैल्यू क्या होगा जब x y z lie in a plane है, their box product is 0 है. बॉक्स प्रोडक्ट इज 0 का मतलब क्या है? सो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z इक्वल टू 0 है. इसका मतलब क्या है ना? सो दिस इज x y z एंड सो दिस इज, ठीक है, सो दिस इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 एंड सो दिस इज माइनस 1, सो दिस इज अल्फा, ठीक है, माइनस 1 अल्फा एंड सो दिस इज बीटा है एंड सो दिस इज बीटा, सो दिस इज माइनस 1 एंड अल्फा, सो दिस इज इक्वल टू 0 है. ठीक है, अभी एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है क्लियर, देखो इसका जो डिटरमिनेंट है, इसका डिटरमिनेंट तो नॉन जीरो होगा. जब ये नॉन जीरो है इसे डिवाइड कर दो. सो दैट मीन्स क्या है ना? अल्फा बीटा माइनस वन अल्फा बीटा एंड बीटा माइनस 1 अल्फा इक्वल टू 0 है. अभी इसको मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ठीक है, एंड सो दिस इज माइनस बीटा, सो दिस इज माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एंड सो दिस इज माइनस, सो दैट इज व्हाट? माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज देखो माइनस 1 एंड सो दिस इज व्हाट? माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर. अब एक बार चेक कर लो. सो दिस इज अल्फा बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा, बीटा माइनस 1 अल्फा, बीटा माइनस 1 अल्फा, माइनस 1 अल्फा बीटा, बीटा माइनस 1 अल्फा इंटू, सो दिस इज अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा, सो दिस इज माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर. सो दिस इज 1, so this is what? ये तो माइनस 1 माइनस अल्फा बीटा, so this is 1 minus alpha beta. So that means is what? Alpha cube plus alpha beta minus plus alpha beta plus beta cube minus alpha beta equal to 0 है. So this is what? Alpha cube plus beta cube plus alpha beta, so that is equal to, ठीक है, clear. So that is alpha cube, so this is also, so this is alpha cube plus beta cube, ठीक है, एंड सो दिस इज माइनस 1 इक्वल टू 0, सो दिस इज 3 अल्फा बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है. सो हियर व्हाट विल गेट? सो दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है. ठीक है, सो यहीं से आपको क्या मिल रहा है? देखो, सो दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड सो दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड सो दिस इज माइनस 1 का क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा इंटू 1 है. सो दैट मीन्स इज व्हाट? a cube plus b cube, so like this. So here what you'll get? Alpha plus beta minus 1 equal to 0 है. So this is alpha plus beta का वैल्यू 1 है. लेकिन हमें फाइंड करना था अल्फा प्लस बीटा माइनस 3, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3, 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 है. ठीक है, ये आपको समझना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो. सो दैट इज लेट, ठीक है, let a1 a2 a23 belongs to R such that 1 by 1 plus 2 by 5x whole to the power 23 equal to summation I is equal to 0 से 23 ai except for every x belongs to R. Let AR be the largest among the numbers, ठीक है, ai for I for j is lying between 0 से 23, then the value of R is. So that means क्या? What you will find out here we will find out the numerically greatest term है. क्लियर, ये ऐसा गिवन है. देखो यहीं पे क्या गिवन है? सो ऐसा गिवन है. सो दिस इज 1 प्लस 2 by 5x होल टू द पावर 23, सो दैट इज समेशंस, ठीक है, i इज इक्वल टू 0 से 23, सो दिस इज ai xi है. ठीक है, क्लियर. देन द मिनिमम वैल्यू, सो दिस इज m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू इज व्हाट? m प्लस 1, सो दिस इज 1 प्लस 5 बाई 2x. ठीक है, सो लाइक दिस. यहीं से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा. m क्या है? सो दिस इज 23 प्लस 1. ठीक है, एंड सो दिस इज x का जगह पे, क्लियर, x का जगह पे आप यही रखो. सो दिस इज x का जगह पे सपोज, सो दिस इज 1, सो इट विल गेट, सो दिस इज व्हाट विल गेट? यू विल गेट 48/7 है. 48/7 मीन्स क्या? 6.85 है, 6.85. सो दिस इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा ना? सो दैट इज व्हाट? ठीक है, सो यू विल राइट t ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ m प्लस 1. So that is what? So this is T7. ठीक है, T7 का मतलब क्या है? So this is T6 plus 1. So this is R का वैल्यू क्या है? So that is 6 है. ये आपको समझना है. The value of R, so that is 6 है. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था? वैल्यू ऑफ R है. T R प्लस 1 फॉर्म में जब होगा, क्लियर, R का वैल्यू आपको फाइंड करना है. यहीं पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जब ये ऐसा होगा, क्लियर, सो दिस इज ये जब ऑड होगा, ठीक है, सो ऐसा वैल्यू आपको मिलता है. सो लाइक दिस.
Another fantastic questions from clear. So this is differential calculus. So here what you will get now. So this is let R denote the clear set of all real numbers where from R to R is defined by. Okay. So this is fx. Okay. Fx equal to is what? Fx equal to this. ये क्या है ना 6x plus sin x and so this is 2x. So this is plus sin x. ये कब होगा ना जब x is नॉन जीरो है and x जब जीरो है ये क्या होगा ना so this is 7/3 है. Then which of the following statement is true है ठीक है क्लियर which of the following statement is true. So my dear friends यहीं पे ये जो फंक्शंस है क्लियर फंक्शंस पे क्या करोगे इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे. इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो. सो दिस इज इसका डेरिवेटिव सो दैट इज व्हाट ठीक है 2x plus sin x का होल स्क्वायर. So this is 2x plus sin x इसका whole square and so this is 2x plus sin x and so this is 6 plus cos x and so this is 6x plus sin x and so this is into is by 2 plus cos x. इसको जब simplify करोगे so what you will get so this is you will get 4 sin x minus 4x cos x ठीक है and so this is 2x plus sin x का whole square है ठीक है. अभी आपको क्या करना है सपोज इफ यू डिवाइड दिस वन सपोज इफ यू टेक कॉमन 4 cos x कॉमन ले लो सो दैट इज 10x minus x एंड सो दिस इज 2x plus sin x का होल स्क्वायर. ये कब होगा जब x नॉन जीरो है. सो लाइक दिस x नॉन जीरो. तो इसका जो ग्राफ है इसका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे सो लाइक दिस ठीक है. सो क्लियर सो व्हाट यू विल गेट सो दिस इज a क्या होगा देखो सो दिस इज लाइक दिस a π/2 पे है. This is π/2, this is pi, this is 3 π/2 पे a asymptote है. So this is 3 π/2. ये क्या है 2 pi है. ये क्या होगा so this is 5 π/2 है ठीक है. So this is 5 π/2, this is 3 π/2 so like this ठीक है. अभी जो कर्व है so कर्व is like this ऐसा कर्व है. ये जो फंक्शंस है इसका जो कर्व है so like this ठीक है. सो यहीं से ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा आप इजीली फाइंड कर लोगे. सो लाइक दिस सो ऐसा चल जा रहा है ठीक है क्लियर. सो दिस इज जैसा ये 10x = x है ना ठीक है तो ऐसा जा रहा है. तो यहीं पे कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है फ्रॉम द ग्राफ यू कैन इजीली कंक्लूड द क्वेश्चन. सो दैट मीन्स क्या ठीक है. सो यहीं से ही आपका क्लियर ऑप्शन आप चेक कर सकते हो ठीक है क्या होगा.